Yes, today we will be starting with the new chapter, that is chapter 13, Fun with Magnets. We will be understanding this chapter, what is magnets. Magnets क्या होती हैं, magnets कैसे काम करती हैं. Okay, so let's start. Any material that has the capability of attracting iron objects is called a magnet. कोई भी material, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो, कैपेबिलिटी मींस उसके अंदर एबिलिटी हो, वो इतना कैपेबल हो कि वो आयरन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, उसको, उस ऑब्जेक्ट को, उस मटेरियल को हम मैग्नेट बोलते हैं. एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मैग्नेटिज्म. उन आयरन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं. इस प्रॉपर्टी को, अगर ये कोई प्रॉपर्टी किसी भी एक आयरन ऑब्जेक्ट के अंदर होती है कि वो किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उस मटेरियल के अंदर अगर प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को वी कॉल्ड एज इट मैग्नेटिज्म. Magnets are widely used in stickers, games, toys, and electrical appliances. Magnets are used everywhere in these all things. They are also used in debit cards, credit cards, or ATM cards. हम लोग जो cards use करते हैं, these magnets are also used in these cards. Magnets are used to separate iron objects from scrap. Scrap से iron object को separate करने के लिए. What do you mean by scrap? Anybody will tell? What do you mean by scrap? What do you mean by scrap? कोई बताएगा scrap का मतलब क्या होता है? Scrap means waste material. means कूड़ा कबाड़ा. Yes, waste material. Waste material, good. जो जितना वेस्ट मटेरियल होता है उसके अंदर से जो आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सेपरेट कैसे करते हैं? मैग्नेट के द्वारा, है ना. बड़ी बड़ी मैग्नेट्स होती हैं जिनको प्लेस किया जाता है और उसके अंदर से, स्क्रैप के अंदर से आयरन ऑब्जेक्ट्स निकल के उसको अट्रैक्ट होके चिपक जाते हैं उससे. दे हैव इंडस्ट्रियल एज वेल एज मेडिकल यूज ऑल्सो. अब मैग्नेट्स का इंडस्ट्रियल यूज भी है एंड मेडिकेशनल यूजेस भी हैं. ये हमारा जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी इनको यूज करते हैं. कैसे यूज करते हैं? इन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. एमआरआई सुना होगा सबने. दैट फुल फॉर्म इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. जो एमआरआई होता है दैट इज विद द यूज ऑफ दीस मैग्नेट्स ओनली. डॉक्टर्स लुक इनसाइड द बॉडी और डॉक्टर क्या करते हैं? उस एमआरआई से हमारी बॉडी के अंदर की स्टडी करते हैं. और दिस ह्यूज मैग्नेट्स आर रिक्वायर्ड. इसके लिए क्या जरूरत होती है? बड़े बड़े मैग्नेट्स की नीड होती है. In this chapter, we shall discuss about the discovery of magnets, their types, poles, etc. अब इस चैप्टर में what we will study? We will study about the magnets, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, उनके types and poles. So this part is clear to everyone? जब खाऊंगा जब नहाऊंगा. Yes sir. Mute yourself. Angad, Rakshas, everyone mute yourself so that no disturbance is there. Okay sir. So Sorry sir. I think magnets, everybody has seen magnets. सबने देखा होगा magnets को. Yes sir. Yes sir. Can anyone tell in what things you have seen magnets? कोई बताएगा कहाँ देखा है आपने magnets को? Sir, magnet. Yes, magnets. Sir, in speaker. Very good, very good. Speakers में होती हैं. Sir, refrigerator. Refrigerator, yes. More. AC. In phone. In AC. AC, then Sir, fridge. Fridge. So there are many devices and Yes. where magnets are used. Okay. So how magnets were Yes. discovered? अब इनको डिस्कवरी इनकी कैसे हुई थी? About 4,000 years ago, a shepherd boy named Magnus lived in Greece. There was a shepherd. Shepherd means, what do you mean by shepherd?
शेपर्ड का मतलब क्या होता है? Sir, what? Shepherd. What is the meaning of shepherd? Shepherd are the people जो हमारी जो goats होती हैं, sheep होती हैं, इनको लेके घूमते हैं ना, those are called a shepherd. So there was a shepherd boy named Magnus. उसका नाम था Magnus, and he lived in Greece. Once, while he was fiddling with his stick, the metallic end of the stick got stuck with the rocks. जब वो खेल रहा था अपने स्टिक से with rocks, तो क्या हुआ, जो metallic end था, जो end means जो दो end होते हैं ना स्टिक के, तो one end was metallic end, जो metallic end था that got stuck with the rocks, वो rocks से जाके stuck हो गया, अटक गया उसमें. Those rocks contained the natural magnet and were given the name magnetite. अब क्या था, उसकी जो स्टिक थी that was made up of iron, उसकी लोहे की बनी हुई स्टिक थी, वो रॉक से जब खेल रहा था तो व्हाट हैपेंड कि उसकी जो स्टिक थी वो रॉक से जाके अट्रैक्ट हो गई. अब अट्रैक्ट क्यों हुई? बिकॉज वो जो रॉक्स थे बेटा, दे वर द नेचुरल मैग्नेट्स, और इसीलिए उनका रॉक्स का नाम मैग्नेटाइट दिया गया था. Some people believed that magnetite was discovered at a place called Magnesia. अब उनको मैग्नेटाइट नाम क्यों दिया गया था? Because वो जो जगह थी जहाँ पे वो रॉक्स मिलते थे, उस जगह का नाम था मैग्नीशिया. Now magnets and their types. अब मैग्नेट्स क्या होते हैं और उनके कितने तरह के मैग्नेट्स होते हैं? Magnets which are found naturally are called as natural magnets. अब ये जो हमारा नेचर के अंदर जो नेचुरली मैग्नेट्स मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट. A natural magnet has the property of attracting iron objects, but its strength is weak. लेकिन जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है. Lodestone and magnetite are the natural magnets. These both, lodestone, this is a type of rock, and magnetite, it is also a type of rock. These both are the natural magnets. Magnets which are made from pieces of iron are called as artificial magnets. अब ये जो artificial magnets होते हैं, these are the magnets जो हम लोग बनाते हैं. These magnets are stronger than the natural magnets. So artificial magnets जो होते हैं, they are strong than the natural magnets. These are usually made of alloys containing iron, such as steel, and an alloy containing iron, aluminum, and cobalt, and alloys of steel with nickel. ये जो हमारे alloy, ये जो हम magnets बनाते हैं, these are the alloy magnets. ये alloy material से बनते हैं, and alloy material मतलब जब हम दो materials को combine करते हैं तब उसको alloy बोलते हैं. जहाँ पे हम mixture करते हैं किसी भी चीज का, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम alloy बनाते हैं जिसके अंदर iron भी होता है और एल्युमिनियम, कोबाल्ट या निकल, इस तरह के मटेरियल्स को कंबाइन करके हम एक alloy material बनाते हैं जिससे we make these magnets. Artificial magnets are available in various shapes and they are named according to their shape. अब ये बहुत सारी shapes में available होती हैं और जो इनको हम नाम देते हैं that is according to their shape. Some common artificial magnets are shown below. Like first one, this is the cylindrical magnet. अब इसको cylindrical magnet नाम क्यों दिया? Because it has a shape of cylindrical shape. It is in the cylindrical shape. This is bar magnet because it is in the shape, it is a rectangular shape. Bar की shape में है, that's why this type of magnet is called as bar magnet. This is U-shaped magnet because it has a shape U shape. That's why it is called as U shape. This is horseshoe magnet. Horseshoe सबको पता है, जो घोड़े के पैर के नीचे लगाते हैं हम, वो उसकी शेप ये होती है हॉर्स के शू की. हॉर्स के जो फुट का जो बॉटम पार्ट होता है, उसकी शेप इस शेप में होती है. दैट्स व्हाई दिस टाइप इज कॉल्ड एज horseshoe magnet. So it clear to everyone beta? Yes, sir. Any doubts? Yes, sir. Any doubts? No, sir. Chalo. So next, let's continue with the next page. Now, nowadays, a special type of magnet called ceramic magnets are made from the oxides of iron, nickel, and beryllium. अब ये this is a recent thing. अभी हम मतलब ह्यूमन ने क्या करा है, ceramic magnets भी बनाना शुरू किया. This is a new type of magnet. ये किस चीज से बना होता है? Oxides of iron या oxides of nickel या oxides of beryllium.
इस मटेरियल से ये बना होता है. These are called as ceramic magnets. Magnets are of two types, that are permanent magnet and temporary magnet. Permanent magnet retain their magnetic properties for a long period of time. जो परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बहुत लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक रिटेन करती है. रिटेन करना मतलब रोक के रखती है. On the other hand, temporary magnets do not retain their magnetic properties for a longer period of time. जो टेम्पररी होती हैं वो बहुत लंबे टाइम तक अपनी प्रॉपर्टीज को नहीं रोक पाती हैं. They lose their magnetic properties with due course of time. टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है वैसे वैसे उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वीक होती चली जाती हैं, वो उनको लूज कर देते हैं. टू सी हाउ मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स, लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी. देयर इज अ एक्टिविटी गिवन एंड इन दिस एक्टिविटी like they have explained to how magnet will attract iron. कैसे मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा इस आयरन को. So let's see this activity. To show the presence of air, to show the Indian rope trick using a magnet, materials required: a small magnet, paper clip, thread, stand. So these are the four materials they have taken. They have taken a bar magnet. This is a bar magnet, a small magnet. They have taken two paper clips. They have taken two threads, and they have taken a stand. Beta, everybody is able to see this video? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Procedure: take a plastic or paper cup and clamp it on a stand. Place a small magnet inside the cup and cover the cup with a plastic or paper lid. So what they have done, they have taken a stand, they have fixed a glass in it, they have put this bar magnet inside the glass, and they have covered the glass with the this lid. They have covered it. ऊपर के ends को cover Take a कर दिया. paper clip and tie it with a thin cotton thread. Tie the other end of the thread to the base of the stand. Bring the clip near to the base of the cup. The clip and the thread are held in air without support. अब देखो क्या हुआ बेटा. They have taken a paper clip. इस paper clip का one end they have tied with the thread, and other end of the thread they have tied to the bottom of this stand. अब इन्होंने क्या किया, they have brought this near to the magnet. इसको इसके पास लेके आए और छोड़ दिया. अब क्या हुआ, विदाउट सपोर्ट ये पेपर क्लिप हवा में, एयर में हैंग कर रहा है. अभी क्यों हैंग कर रहा है? बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक अट्रैक्शन. ये जो मैग्नेट का अट्रैक्शन आ रहा है इसको, ये इसको होल्ड करने में, एयर में हेल्प कर रहा है. Is it not similar to the famous Indian rope trick? बेटा क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this was the activity. This is called an Indian rope trick. This is the Indian rope trick activity. Now magnetic and non-magnetic materials. अब कौन से magnetic materials होते हैं और कौन से non-magnetic materials होते हैं? Does a magnet attract all the objects or only a few? Let us find out. अब हम देखेंगे कि magnet क्या सभी objects को attract करता है या it only attract a few objects. This is an activity to identify materials which are attracted by magnets. अब यहाँ पे we will identify which materials are attracted by magnets and which are not attracted by magnets. Materials, we'll take a small bar or a circular magnet. This is a procedure. Again, I'll show you this video. To show that magnetic force is maximum at the ends of magnet. Materials required: bar magnet, iron fillings. Procedure: spread some iron fillings on a sheet of paper, place a magnet over it. Lift the magnet and observe the amount of iron filling attracted at different locations of the magnet. Observation: the two ends of the magnet attract the maximum iron fillings. In other words, the magnetic force of a magnet is maximum near its ends. So what they have done,
अटैच a small bar or a circular magnet to the wooden stick. एक wooden stick से उन्होंने circular bar या एक magnet को attract किया. Move this stick magnet over the dry waste from different places. अब हमने क्या किया, इस stick को जिसके ऊपर magnet लगा हुआ है different places पे, जो अलग like office में, home में हमने move किया. And what we'll identify कि जो हमारे office के अंदर जो waste material है, वो materials that get attracted to the magnet, क्या क्या चीजें attract होंगी, pen, blade, ये हमारे attract होंगे. That are not attracted, pencil, eraser, pen, paper, these are all things which will not be getting attracted, because these things, pins and blade, ये किस चीज से बने हुए हैं, metal से बने हुए हैं, that's why ये attract कर रहे हैं. And paper, pencil, eraser, these are non metallic, ये metal से बनी हुई नहीं है चीजें, इसलिए ये attract नहीं कर पा रही है. Now when we see in our home आयरन स्क्रैप, जो जितना आयरन का वेस्ट मटेरियल है वो सब चीजें अट्रैक्ट होंगी. ब्लेड जो होगा वो अट्रैक्ट होगा. ब्रोकन प्लास्टिक आइटम्स, एम्प्टी टूथपेस्ट ट्यूब्स, पेपर स्क्रैप और प्लास्टिक बैग, ये सब चीजें अट्रैक्ट नहीं होंगी. क्यों अट्रैक्ट नहीं होंगी? बिकॉज दीज आर ऑल द थिंग्स मेड अप ऑफ नॉन मेटल, ये नॉन मेटल थिंग्स है, इसलिए अट्रैक्ट नहीं होंगी. So from the above activity, it is clear that magnet does not attract all the objects. अब इससे क्लियर क्या हुआ कि सारे ऑब्जेक्ट्स को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है. ओनली किनको करता है? जो मेटल से बनी हुई चीजें होती है उनको अट्रैक्ट करते हैं. The materials which are attracted by the magnets are called as magnetic substances. जो जितने मटेरियल्स हमारे मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे उनको हम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं. जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, उन मटेरियल्स को हम मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल, देयर एलॉयज आर द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इनको हम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलेंगे. द मटेरियल्स व्हिच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है उनको नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, कॉपर, brass, stainless steel, wood, leather and plastic are the non-magnetic materials. बेटा you should remember these names. आपको ये नाम पता होने चाहिए, याद होने चाहिए कि कौन कौन से हमारे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं और कौन से हमारे नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं. Then only you will be able to identify. अब सपोज कोई भी चीज अगर वुड से बनी होगी तो then magnet will not attract it, है ना. तो वो जब भी हम पता कर पाएंगे जब हमें ये पता होगा इस चीजों का कि कौन कौन से मटेरियल्स हमारे नॉन मैग्नेटिक होते हैं और कौन से मटेरियल्स हमारे मैग्नेटिक होते हैं. द मैग्नेट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द मैग्नेटिक सब्सटेंस. अब मैग्नेट क्या करता है? एक फोर्स एक्सर्ट करता है. एक्सर्ट करना मींस एक फोर्स अप्लाई करता है उन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे जिनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है. द फोर्स with which a magnet attracts a magnetic substance is called as magnetic force. जिस फोर्स से वो उस सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, खींच रहा होता है, उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं. द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड. और वो एरिया जिसके ऊपर हम ये देख सकते हैं कि मैग्नेट का इन्फ्लुएंस, मैग्नेट का असर हो रहा है, उस एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, वो मैग्नेट का एरिया हो गया जितने एरिया पे वो अपना इन्फ्लुएंस, अपना फोर्स को अप्लाई कर पा रही है, उस एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. अब मैग्नेटिक सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स. इसलिए हम जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है और जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है उनको हम एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं मैग्नेट की हेल्प से. क्योंकि जब हम मैग्नेट सपोज मैग्नेटिक सब्सटेंस और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस सब मिक्स्ड हो तो क्या होगा कि इफ वी ब्रिंग मैग्नेट नियर टू देम तो मैग्नेटिक सब्सटेंस जितने होंगे वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वहीं रह जाएंगे. फॉर एग्जांपल अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड कैन इजीली बी सेपरेटेड यूजिंग मैग्नेट. अब सपोज हियर इज दिस एक्टिविटी, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इस जो एग्जांपल दिया है, एग्जांपल जो दिया है हमने सैंड ली और सैंड के अंदर आयरन फिलिंग्स जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े थे वो हमने उसके अंदर डाल दिया, मिक्स कर दिया. अब एज सून एज वी ब्रिंग दिस मैग्नेट नियर टू द दिस सैंड एंड आयरन फिलिंग तो क्या होगा, सैंड को तो ये मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा लेकिन आयरन फिलिंग्स को ये मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेगा और ये दोनों चीजें सेपरेट हो जाएगी. तो बेटा इट इज क्लियर टू एवरीवन यहाँ तक? Yes, sir. Any doubts? Yes, sir. In this part? No, sir. No, sir. No,
नो सर। नो सर। निशांत बेटा क्लियर हो गया सर? निशांत अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर। सर सर यस। सर अट्रैक्ट का मीन्स क्या होता है? अट्रैक्ट मींस अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना। यस ओके, थैंक यू सर। मनप्रीत धारीवाल बेटा क्लियर हो रहा है आपको? यस सर। चलो सर ये मैग्नेटिक एक बार। व्हाट बेटा? सर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ओके। यस। मैग्नेटिक फील्ड इज अ एरिया, वो एरिया है जिसके हो हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो आई शो यू द डायग्राम। हो Everybody is able to see this diagram, magnetic field? yes sir. हाँ, so this is the diagram. So magnetic field are the lines. ये देखो बेटा, ये एक मैग्नेट रखा हुआ है, जितने दूर तक ये मैग्नेट अपना असर दिखा पाएगा उस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड बोला जाएगा। ओके, सपोज अर्थ इज अ मैग्नेट। अब ये अर्थ भी क्या है? एक मैग्नेट है। जितने दूर तक ये मैग्नेट का एरिया वो होगा जहां पे इसका इफेक्ट पहुंच पाएगा, उतने एरिया को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं उस मैग्नेट के लिए। क्लियर? Yes sir. The definition is also given. The region, वो एरिया जिसके ऊपर अराउंड द मैग्नेट, द रीजन अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, जहां पे उसका असर, इन्फ्लुएंस मींस उसका असर, कि जहां तक उसका इफेक्ट देखा जा सकता है, उस एरिया को, उस रीजन को उसका मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर बेटा? Yes sir. Yes. What are the more doubts? पूछो और किसी को डाउट हो, then we'll move to the next part, poles of magnet. Sir, magnet and non-magnet. What बेटा? Sir, magnetic and non-magnetic. Magnetic and non-magnetic. Okay. There are two type of substances. जितनी भी चीजें हमारे चारों तरफ होती हैं, चाहे वो हमारा मोबाइल फोन हो, चाहे वो ग्लास हो, whether it is a table which you are using, whether it is your book, पेन, पेंसिल, जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजों को हमने क्या किया? We have categorized in two things. एक कुछ चीजें हो गई मैग्नेटिक, जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अगर आप सपोज आपका ग्लास है, that is this कांच का ग्लास है आपका, अब अगर आप मैग्नेट उसकी तरफ लेके जाओगे तो अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा? सर नहीं करेगा। नहीं करेगा, है ना? क्यों? अब ये जो आपका जो कांच का गिलास है, दैट इज अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, बिकॉज वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाया। ओके, अब सपोज आपने एक आयरन नेल लिया हुआ है, एक लोहे का कील लिया हुआ है, अगर आप मैग्नेट उसको उसके पास लेके जाओगे तो अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा, सर करेगा। It will attract the iron nail. So then this iron nail is the magnetic substance. जो जितने भी substances जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, यहाँ लिखा हुआ है the materials which are attracted by the magnet, जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, उन मटेरियल को हम मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, और जिनको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है उनको हम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। These are the examples. क्लियर बेटा? Yes sir. Prabjot, you raised your hand. Any doubt? सर मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, जिस फोर्स से वो मैग्नेट अपनी तरफ किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर रहा होगा, उस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। द फोर्स विद व्हिच अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना, उस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे, जितने फोर्स से वो उसको खींचेगा। अगर सपोज एक छोटा सा आयरन नेल है, अब आपने क्या किया, एक छोटी सी मैग्नेट ली हुई है ना, तो वो
उसको अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन कंपेयर टू एक बड़ा मैग्नेट अगर आप लोगे तो वो बड़ा मैग्नेट बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेगा, बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेगा। तो बड़ा मैग्नेट जो होगा वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, छोटा मैग्नेट थोड़ा थोड़ा फोर्स अप्लाई करेगा। तो जितना जो फोर्स है जिससे वो उसको खींच रहा है उसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। क्लियर बेटा? Yes, sir. और बताओ Yes, बेटा sir. डाउट्स? Attracts. अट्रैक्ट मतलब अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना। So shall we Sir, move to the damper. next part? बेटा आगे बढ़े हम पोल्स ऑफ द मैग्नेट। Yes, sir. चलो Yes, पोल्स ऑफ sir. द मैग्नेट। कोई भी Yes, मैग्नेट sir. आपका इट हैज टू पोल्स, दो पोल्स होते हैं उसके। लाइक देयर इज एक्टिविटी गिवन टू शो द मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द मैग्नेट। अब इन्होंने क्या किया, बार मैग्नेट लिया एक, एंड दे हैव टेकन द आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन के लोहे के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन द शीट ऑफ पेपर, प्लेस द मैग्नेट ओवर इट। इन्होंने क्या किया, आयरन फिलिंग्स तो पेपर के ऊपर फैला दिया और मैग्नेट को उसके ऊपर प्लेस किया। Lift the magnet and observe the amount of iron flings attracted at the different locations of the magnet. इन्होंने क्या किया, जैसे ही हम मैग्नेट को उसके ऊपर ले जाएंगे और देखेंगे कि मैग्नेट के जो आयरन फ्लिंग्स अट्रैक्ट हुए हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे हुए हैं। कुछ कोनों पे होंगे, कुछ बीच में भी होंगे, कुछ इधर कोने पे भी होंगे। अब हमने ये देखा कि जो दोनों कोने हैं हमारे, इट इज दिस एंड और दिस एंड, इन पे सबसे ज्यादा मैग्नेट्स हमारे अट्रैक्ट होते हैं, बीच में कम होते हैं। ओके, तो ये दोनों जो एंड होते हैं हमारे, these are the poles of magnet. From the above activity, it is clear that iron flings are attracted more towards the region nearer to the two ends of the magnet. जो हमारा इनके पास वाला रीजन है एंड्स के, इस पे ज्यादा मैग्नेट्स अट्रैक्ट होते हैं, बीच में कम आयरन फ्लिंग्स अट्रैक्ट होते हैं। In other words, the magnetic field is maximum at the two ends of the magnet. जो हमारे मैग्नेट के टू एंड्स हैं, इन एंड्स पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा आयरन फ्लिंग्स को अट्रैक्ट कर पाता है। The ends of the magnet where maximum iron flings are attracted, i.e. the force is maximum, are called the poles of magnet or magnetic poles. या तो इनको मैग्नेट पोल्स ऑफ मैग्नेट बोलते हैं या मैग्नेटिक पोल्स भी बोल सकते हैं। ये दो एंड हैं जिनके ऊपर हमारा जो फोर्स होता है सबसे मैक्सिमम होता है। Each magnet has two magnetic poles. The poles of magnet are located at its end. जो उनके एंड होते हैं उन पे उसके पोल्स को की लोकेशन होती है। The poles of the magnet occur in pairs and cannot be separated. ये किसी मैग्नेट के अंदर ही सेपरेट नहीं हो सकते हैं। अगर आप एक मैग्नेट के दो टुकड़े कर देंगे तब भी उसके दो, हर एक पीस के दो एंड बन जाएंगे। That's why a magnet is called as dipole. Dipole means di means two. ओके, पोल मींस उसके एंड्स। तो एवरी मैग्नेट इज डाइपोल, जिसके दो एंड होते हैं, इसलिए उसको डाइपोल बोलते हैं। टू वेरीफाई दिस, टेक अ थिन बार मैग्नेट। हमने क्या किया, एक छोटा सा एक बार मैग्नेट लिया, चेक इट टू पोल्स विद द हेल्प ऑफ आयरन फ्लिंग्स। हमने आयरन फ्लिंग्स से उसको चेक कर लिए कि ये दो इसके एंड जो है यही पोल। ब्रेक दिस बार मैग्नेट इनटू टू पीसेस। अब हमने क्या किया, इस बार मैग्नेट को दो पीसेस के अंदर डिवाइड कर दिया, पीसेस विद आयरन फिलिंग्स। अब हमने क्या किया, जब हमने फिर से इनको आयरन फिलिंग से अट्रैक्ट किया तो इसके भी दोनों एंड्स पे अट्रैक्शन हो गया, इसके भी दोनों एंड्स पे अट्रैक्शन हो गया। Each broken piece also acts as a magnet with its own two poles. हर एक broken piece के फिर से दो एंड बन जाएंगे और उसका भी एक मतलब एक उसका नॉर्थ एंड बन जाएगा, एक उसका साउथ एंड बन जाएगा। सो क्लियर बेटा, दो पोल्स होते हैं हर एक मैग्नेट के। Yes, sir. Okay. So what happens if you break each piece again and again? You will find that each smaller piece is a magnet of its own two poles. हर एक छोटा पीस अपने आप में दो पोल वाला मैग्नेट बन जाएगा। Thus we find that the poles of a magnet occur in pairs and it is not possible to obtain an isolated single pole. कोई भी मैग्नेट ऐसा नहीं होगा जिसका एक ही पोल होगा, हर एक मैग्नेट के दोनों पोल्स मिलेंगे हमें। अब द नेक्स्ट पार्ट इज वी विल फाइंड द डायरेक्शन कि किसकी कौन सी डायरेक्शन है। नाउ लाइक यू पीपल माइट हैव ऑब्जर्व्ड दिस आल्सो, जब आप दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो दो एंड उसके ऐसे होते हैं जिनसे वो मतलब चिपकते नहीं है, अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ऐसा होता है ना।
और 2 एंड उसके ऐसे होते हैं जिनसे वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। देखा है आपने इस चीज को कभी? Yes, sir. देखा है ना? बिकॉज विल डिस्कस इट टुमारो, बट आई एम टेलिंग यू कि हर एक मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं बेटा, वन इज साउथ पोल, वन इज नॉर्थ पोल। कभी भी दोनों अगर मैग्नेट के नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल को हम दोनों को एक साथ लाएंगे, if we will place the north pole of both the magnets together, वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। ओके, अगर दोनों साउथ पोल को हम एक साथ लाएंगे तब भी वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। लेकिन इफ अगर हम किसी का नॉर्थ पोल और किसी का साउथ पोल को दोनों को पास लाएंगे तब उसका अट्रैक्शन हो जाएगा। तो दिस विल बी स्टडीइंग टुमारो, we'll how to find the direction. Now any doubts till the part we have covered today? Sir, dipole. डाइपोल, दैट इज डाइपोल, डाई मींस टू। बेटा हर एक मैग्नेट को हम डाइपोल मैग्नेट बोलते हैं बिकॉज हर एक मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा पीस हो। डाइपोल, 2 पोल्स। Sir, what is homework? Homework is read this part, okay? If any doubt is there, you can ask me tomorrow. Underline the hard words, try to find the meanings. अगर किसी भी चीज का मीनिंग आपको नहीं मिलता है तो tomorrow we will be discussing the meanings again. Okay, I am taking the attendance for today. Shuman Rastogi, Manpreet Dhariwal, Akshay, Anas, Angad Grewal, Anshuman Chaudhary, Moksh Soni, Prabjot Singh, Satya Gill, Shivi, Shruti Yadav, Nishant Singh was there. और कोई बच्चा जिसकी अटेंडेंस नहीं हो? Sir, Rakshit. 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 Sir, Okay. Krishna. Krishna, yes, Krishna. Sir, Anas. Yes, Anas, I have taken the name. So, shall we end today's session? It is clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir, for teaching us. Thank you, sir, for Okay, teaching beta. us. Okay. And have a nice day, sir. Okay, have a nice day. Have a nice day. Class and